Okay, well, so today we will start the second part of the fourth unit, that is diffraction. So now the first question is that what is diffraction? Diffraction is a little, it's a wave phenomena. So how we will explain the diffraction? You have already heard about the diffraction in your earlier classes, but here I am just explaining us a few more things about the diffraction. Diffraction is basically when the light is passes through a small hole or an obstacle, then light bends from its original path. So basically this bending phenomena is basically known as the diffraction. There are two types of, I am just give you a quick review about the diffraction. There are two types of diffraction, that is known as, first is Fraunhofer diffraction, that will be in your course. So what is the condition for the Fraunhofer diffraction? In the Fraunhofer diffraction, the source and screen, basically the light is passing from coming from a source, and it will reach to the screen. So both are separated by an infinite distance. In not infinite distance, this distance is very large. So basically they are placed at a large distance. There will be a large distance between these two. That in case of Fresnel diffraction, source and screens are placed at a comparatively small distance in comparison to the Fraunhofer diffraction. So sometimes a question can be in your examination, that is what is the difference between these two. So you can note down, these points are written very in a simpler form, so you can go through that. And there are few things which are available in the Fraunhofer diffraction, you will already seen in the next lectures, but in the Fresnel diffraction this is not in our course, so we will focus only the Fraunhofer diffraction. Now I already told you the interference and diffraction both are the wave phenomena. So there sometimes this question can also be in your examination. What is this question can become in 2 marks, so you can write the difference easily. So I am just mentioning the difference. What is the interference, you have already heard about, and diffraction you will studied in this lecture or after in next lecture also. So now we are quickly moving to the next topic, that is very important for your examination point of view, that is the Fraunhofer diffraction due to single slit. अब हम बात यहाँ करते हैं कि डिफ्रेक्शन जो है क्या है और सिंगल स्लिट क्या है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लाइट किसी छोटे से होल से पास होना, व्हेन द लाइट इज पासिंग थ्रू अ स्मॉल होल and the breadth of this hole is is the order of the wavelength of the light. So the light is bended from its original path. लाइट क्या है, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है, और स्लिट के एजिस से जो बेंडिंग होती है, उस बेंडिंग को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन. तो हियर वी विल सी कि फ्रॉनहोफर वाज द फिजिसिस्ट हु गेव the different conditions के how the diffraction pattern will be observed on the screen when the light is light passes through a slit. एक स्लिट है जिससे लाइट क्या है पास होगी, तो उसकी क्या कंडीशंस होंगी. हियर वी विल सी दैट. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको यहाँ देखिए. यही सारे स्टेप में जब आपको सिंगल स्लिट की जगह डबल स्लिट यूज़ करूँगा, फिर डबल स्लिट की जगह एन स्लिट यानी ग्रेटिंग का केस स्टडी करूँगा, तो ऑल थिंग्स आर सिमिलर. पैटर्न वही रहेगा, बट आपको थोड़ा फोकस्ड होके एक वन बाई वन कंडीशंस को देखना है. तो सिंपली बाकी चीज़ें तो आप बना सकते हैं. फिगर एक सोर्स है, सोर्स यहाँ से लाइट जब इस लेंस से पास होती है तो दिस लाइट विल बी पैरेलल. ये स्लिट मैंने कंपैरेटिवली बड़ी बनाई है क्योंकि मुझे एक डायग्राम शो करना है. आई एम शोइंग अ डायग्राम, सो इस डायग्राम को शो करने के लिए मुझे स्लिट को बड़ा बनाना पड़ा है. अब इससे क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट पास होगा, और इसमें ज़रूरी नहीं है सिंगल वेव होगी, काफ़ी सारी वेव्स होंगी जो इससे पास होंगी. मैं इसको एक वेव कंसीडर करता हूँ जो उसके एजिस से पास होके इस लेंस पर पहुंची, और इसके बाद यहाँ अगर ये कोई डिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये पी पॉइंट पर आती. दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम. जैसा कि आप ग्रेटिंग के केस में देखते हैं, व्हेन यू सी एट द सेंटर यू विल गेट द सेम लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स. बट जब आप इधर उधर चलते हैं तो आपको क्या है, डिफरेंट इंटेंसिटी के मैक्सिमास मिलते हैं, जिन मैक्सिमास को हम सेकेंडरी मैक्सिमास कहते हैं. और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड रेड आपको फर्स्ट टाइम मिला, फिर सेकेंड टाइम मिला. तो इस तरीके से हम इसमें भी देखेंगे कि सिंगल स्लिट में आपका ये
मैक्सिमा जो है, सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे मिलते हैं, दोनों साइड मिलते हैं। ये स्क्रीन के, ये आपने देखा होगा ग्रेटिंग में, लेफ्ट साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड टू द सेंटर एंड द राइट साइड टू द सेंटर। बट यहाँ ग्रेटिंग की बात हम बाद में करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल स्लिट। अब क्या है कि जब ये एज से पास होती है तो इट विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो ये कुछ रे इस तरीके से चलती है और P1 पॉइंट पर जाके ये मिलती है। तो अब इन दोनों के बीच का ये एग्जैक्टली ऐसे आना चाहिए था, बट इट इज कमिंग लाइक दिस। सो देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस बिटवीन ए बी। सो ए एंड बी में पाथ डिफरेंस कितना होगा? जब ए यहाँ से स्टार्ट करता तब तक बी क्या है, यहाँ तक पहुँच चुका था, ये बी वाला। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, पाथ डिफरेंस होगा, डेट पाथ डिफरेंस विल बी BC. So this angle is, let's say this angle is between these two A and C, this angle is theta. So now you can use the Pythagoras theorem. I just put a normal on that, so you can calculate the sine theta by using this relation in triangle ABC. Sine theta becomes this BC. BC is a perpendicular upon hypotenuse, so this becomes BC upon AB. And BC is basically you need to find out, that is the path difference, and AB is the E. E is basically this is the width of the slit, and this is most sometimes it's denoted by E, in some books it's denoted by A, so there is no bother about it. I am just taking E, so there is no problem. So the BC becomes E sin theta. इस ट्राइंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से ये निकाल लिया। अब ये मेरा पाथ डिफरेंस आ गया। नाउ आई विल कैलकुलेट द फेज डिफरेंस। अब मुझे इस ट्राइंगल, इस फिगर की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट मूविंग। तो फेज डिफरेंस, यू नो द रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। सो यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ path difference here. So what is the value of path difference? E sin theta. So just put here, then what you will get? 2 pi upon lambda into E sin theta. Now I already told you in the beginning of this derivation, the many waves will pass through this slit. So I am just considering the n number of waves is passing through this slit, and these wavefront basically are these small amplitude, all the wave which having the amplitude A. Let's say I am saying the amplitude of these, all the wavefronts having the amplitude A. I am just assuming all having the same amplitude. So now I am just calculating the phase difference between two consecutive wave. दो consecutive wave के बीच phase, जब n wave है तो ये आपका पूरा पाथ डिफरेंस आ गया किसके? A और B आपका जो टोटल है विड्थ है उसके बीच में एक पूरा वेव फ्रंट पास हो रहा है। अब दिस वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू n वेवलेट्स या n वेव फ्रंट्स। ये जो आपकी वेव है ए बी, इसको किस में डिवाइड किया गया? n वेव फ्रंट्स में डिवाइड किया गया है। तो मैं इसको क्या करूंगा? इट विल डिवाइडेड बाई n। तब इसका मतलब दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दी टू, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव वेव होंगी उनके बीच का पाथ डिफरेंस आपका हो जाएगा 1/n इंटू फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। समझ आया? ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली कि बेसिकली क्या है। पूरा पहले ए बी था, तो ए बी में पाथ डिफरेंस कितना था? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू ई साइन थीटा। बट ये पूरा कितने में डिवाइड है? दिस होल वेव फ्रंट ए बी इज डिवाइडेड इंटू n इक्वल पार्ट्स। So because of that I am considering here it will divided by n. So that will be the path difference between the two consecutive wave, any two consecutive wave. So I am denoting this whole expression by delta. You can take anyone. I am just to make the expression simpler, I am just assuming this is lambda. So now I am going to calculate the resultant amplitude ऑफ n वेव्स। जो n वेव्स हैं उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा। और ये एक अपने आप में एक डेरिवेशन है कि जो n वेव्स पास होके आएंगी वो हर वेव के बीच पाथ डिफरेंस डेल्टा 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 यानी डेल्टा, दिस पाथ डिफरेंस विल बी अकर। सो इफ यू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल दीज वेव्स, so this becomes, I am not giving the derivation here. If you interested, then I will give you separately, but I am just giving the expression that will be looks like R is equals to A is the amplitude of each wave, sine n delta by 2 upon sine delta by 2. That is the expression for the resultant amplitude on n wave which is passes through the AB slit.
So the resultant of the n waves will be a sine n delta by 2 upon sine delta by 2. So now put the value of delta here from this expression. आप यहाँ से delta की value इस expression में रख दीजिए. So this becomes a will be at the outer edge and sine n by 2 is here. Just put the value of delta 1 upon n 2 pi upon lambda e sine theta and close the bracket. Now put the same value is here, so this 1 by 2 is here, and now this expression will reduce to this 2 and 2 will be cancelled out, and this 2 and this 2 will also be cancelled out, and this n and this n will also be cancelled out. So this expression reduces to a sine, what will be the remaining, pi e sine theta upon lambda, and in the denominator this n will additional, and same thing will be here, pi e sine theta upon n lambda. Now I am again assuming the few things. A sine alpha, I am just assuming this pi e sine theta upon lambda is equals to alpha. I am assuming this whole expression pi e sine theta, you just remember these things, pi e sine theta upon lambda. मैंने इसको अल्फा मान लिया है, तो आई एम जस्ट पुट अल्फा इन प्लेस ऑफ दिस टर्म. So this becomes a sine alpha upon, and this expression, the denominator becomes alpha over n, because n is additional here. So this expression becomes a sine alpha over sine alpha over n. Okay, so now I am just assuming, I already told you this, basically this alpha over n is very very small. So if this alpha over n is very very small, so the sine alpha over n is almost equals to alpha over n. So I am just removing this sine alpha over n by alpha over n, so that n in the denominator of the alpha will reach to the numerator. So this becomes n a sine alpha over n. I am just again assuming that this n a is the combination of number of waves and the amplitudes. So I am assuming this is equals to capital A. So that will be the final expression for the resultant of n wave, which is coming out from the slit AB. So R A sine alpha over alpha. Now I have got the expression for the amplitude. So we can calculate the intensity of the waves which is coming out from this slit. So intensity is the square of the amplitude, so this I is equals to R square. So this becomes a square sine alpha over alpha whole square, and I am just saying this a square is I naught, that is the maximum intensity of the wave. Now we have got the expression for intensity. Now I am applying some condition to calculate the position or the condition for the principal. First we will calculate the condition for the principal maxima. Principal maxima is also known as principal maxima, central maxima, central image, zero order maxima. So basically these names are similar, these names having the same meaning. इनका जो मतलब है वो सेम है. प्रिंसिपल मैक्सिमा हो, चाहे सेंट्रल इमेज हो, सेंट्रल मैक्सिमा हो, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा हो, ये आपके सारे एक ही चीज़ है. तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग प्रिंसिपल मैक्सिमा, मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट द प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए ये वैल्यू क्या है, ये अगर इसकी वैल्यू मुझे ज़्यादा चाहिए तो ये वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए. आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो. अगर ये वैल्यू जीरो होगी तो आई आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. सो विच इज़ नॉट पॉसिबल हियर. So I am just assuming this alpha is not exactly 0, it approaches to 0. It is almost approached to 0. So you just apply this limit here, and so you know the value of sine alpha over alpha very well if the limit alpha tends to 0. So this will be 1, and the value of this expression, if this value is 1, so finally I max, that is the maximum intensity, is equals to a square. So this is the condition for the principal maxima. The intensity of the principal maxima is a square. Now I am just calculating the condition for how the angle will vary for the principal maxima. For the principal maxima, theta will be 0 because it is at the center, so there is no deviation there. So you can see from here, alpha is equals to 0. Just put the value of alpha, pi e, from the above, pi e sine theta over lambda, then you will get sine theta equals to 0, and sine theta is 0 and theta will be 0. So this is also proof here, if the at the principal maxima theta is also equals to 0. Now I am again move to the next minima.
आप देख रहे हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा आई विल शो यू द फिगर ऑल्सो कि हाउ द intensity is distributed for the principal maxima, minima and secondary maximas at all. तो मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉर्मली लाइट फॉल होती है जिसके प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी मिनिमा, जहाँ प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड होता है वहाँ आपका मिनिमा मिलता है दोनों साइड. तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दिस एक्सप्रेशन बेसिकली साइन अल्फा आपका क्या है, जीरो होना चाहिए, क्योंकि अल्फा जीरो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. साइन अल्फा जीरो होगा बट अल्फा जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन अल्फा आपका जीरो हो चुका है, उसको हम जीरो मान चुके हैं पहले ही केस में. तो जब साइन अल्फा जीरो होगा तो वो किस केस में होगा, प्लस माइनस पाई, मतलब प्लस पाई के लिए भी माइनस पाई के लिए, बिकॉज मैक्स मिनिमा इज फाउंड ऑन द बोथ साइड ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा. तो ये एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे अल्फा की आप वैल्यू रख दीजिए, पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू, इस एक्सप्रेशन से अगर आप देखेंगे तो प्लस माइनस एन पाई, तो दिस बिकम्स ई साइन थीटा प्लस माइनस एन लैम्डा. और एन की वैल्यू यहाँ वेरी करेगी 1 2 3, बिकॉज जीरो पे आपका क्या है, ऑलरेडी प्रिंसिपल मैक्सिमा है, तो उस पर आपको ये वैल्यू मिनिमा की वैल्यू नहीं मिलेगी. सो दैट विल बी द कंडीशन फॉर द मिनिमा व्हेन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो. अब वी आर क्विकली मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, दैट इज द सेकेंडरी मैक्सिमा. सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा विल बी रिड्यूस्ड. क्या होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या है इन कंपेरिजन टू प्रिंसिपल मैक्सिमा, विल रिड्यूस. सो आई जस्ट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, वैल्यू रिड्यूस होती जाती है, तो आई जस्ट डिफरेंशिएट इट एंड पुट इज इक्वल्स टू जीरो. मैं इसको इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा एंड पुट इट इक्वल्स टू जीरो, सो वी विल गेट द कंडीशन फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा, बिकॉज फाइनली इसको जीरो होना है. तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी कम होके फिर उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे. तो यू जस्ट डिफरेंशिएट दिस आई with respect to alpha, because alpha is the variable here, so you just use the derivation, that is the where it is d over d alpha a square sin square alpha over alpha square equals to 0. you just take the simple expression, आप इसको अलग अलग ले सकते हैं, there is no issue about it. आपने इसको a square will becomes out and you just differentiate it. आप इसको differentiate करिए, then finally what you will get, you will get this expression. I will not tell you how you will differentiate it. मैंने थोड़ा सा यहाँ सेपरेशन करके इसको लिख लिया है, ये सेपरेटेड टर्म्स में लिखा हुआ है, बट आई विल नॉट टेल यू कि हाउ यू विल डिफरेंशिएट इट. आप नीचे अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा टू द पावर 4 होगा, फिर आप उसको ऊपर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस माइनस करेंगे आप numerator into differentiation of denominator and put it equals to 0. So you will get this expression after the simplification. I will not tell you how you will calculate it. अब आप क्या करेंगे, if you have any doubt you can ask me, there is no issue. You have already put alpha, this sin alpha is 0 and alpha is 0, so we will not take these condition in this expression equals to 0. But you can take this condition, alpha cos alpha minus sin alpha equals to 0. So finally you will get alpha equals to alpha cos alpha equals to sin alpha. You just take it to the right hand side and finally alpha becomes sin alpha over cos alpha. तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, tan अल्फा निकल के आ गई. अब इससे क्या है, आप कंडीशंस निकाल सकते हैं. अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसको समझना भी थोड़ा सा जरूरी है. इसमें दो चीज़ें हैं, हाउ यू विल प्लॉट इट. पहले आप प्लॉट करेंगे y इक्वल्स टू अल्फा, यानी ये एक एक्सप्रेशन हो गया y इक्वल्स टू अल्फा, दूसरा हो गया y इक्वल्स टू tan अल्फा. और पहले वाले एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं c 0 है इसका, और m जो है इसकी जो स्लोप है दैट इज 1. सो दिस लाइन विल पासिस थ्रू दिस origin. So this y equals to alpha is already plotted by me and this line will be look like, ये लाइन कुछ ऐसे दिखाई देगी. I just plotted here. Now I am going to plot the tan alpha. So I am just calculating the value of tan alpha. You know tan alpha varies from 0 to infinity. So you can find out where tan alpha is 0. Tan alpha is 0 at tan 0 plus minus pi plus minus 2 pi plus minus 3 pi. At these values tan alpha is 0 plus minus, because plus and minus, so you will plot it in both side and up and down also. So plus minus 3 pi by 2 plus minus 5 by 2, the alpha is infinity, 1090 120 and these values, the alpha is tan alpha is infinite. So you just plot it, you can see here. If you take tan alpha,
if you take 10 0, you will start from here, 10 0 will be here, and 10 3 pi by 2, or you can say 10 pi by 2. You can take another value of 10 pi by, you can divide this 10 pi by 2, pi 3 pi by 2, 2 pi 3 pi by 2, and so on. Same thing will be here. अब आप यहाँ से इसको चेंज करेंगे, पाई बाई 2 पे यू नो कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा विल बी इनफाइनाइट, सो अल्फा विल बी लुक्स लाइक, ये हो गया प्लस पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 पे भी आपका अल्फा जो है कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है यहाँ तक। अब आप ऐसे ही देखेंगे, फर्दर आप देखेंगे पाई पर आपका क्या है, टेन अल्फा 0 है, तो देखिए पाई पर मैंने इसको अल्फा को 0, टेन अल्फा की वैल्यू 0 ली है। फिर आप पाई के बाद इसकी वैल्यू आती है 5 पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 आप लेते हैं, तो 3 पाई बाई 2 अगर आप देखेंगे तो 3 पाई बाई 2 पर ये क्या है, सीधा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और माइनस 3 पाई बाई 2 क्या होगा, ये आपका यहाँ से आप देखेंगे, आई एम जस्ट शोइंग यू दिस होल ग्राफ। यहाँ से आपका ये माइनस पाई बाई 2 पे गया था, उसके बाद आप देखेंगे ये आपका 3 पाई बाई 2 पे गया है। अब आप देखेंगे यहाँ से, यहाँ अगर आप 2 पाई पे आते हैं, 2 पाई पे इट विल अगेन 0, एंड ये यहाँ से आपका 5 पाई बाई 2 पे 0, ये माइनस 3 पाई बाई 2 पे 0, फिर आप 3 पाई पे जाएंगे तो ये क्या होगा, 7 पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा, और ये 5 पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा। सेम थिंग विल फॉलो हियर, ये भी चीज़ यहीं फॉलो होगी, माइनस पाई बाई 2 अप एंड डाउन, फिर माइनस पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस 5 पाई बाई 3, इस तरीके से ये वैल्यू आपकी जो है वेरी करेंगी, और यू कैन रिप्रेजेंट बाय इन दिस ग्राफ ऑल्सो। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज बेसिकली, there is a intersecting point between this line and these graphs. So these are the intersecting point of these lines and this graph. So you will get alpha equals to 0 plus minus 3 pi by 2 plus minus 5 pi by 2. इस तरीके से लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है। देखो पाई बाई 2 पर नहीं कर रही है, बाकी की 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, प्लस 5 बाई 2, माइनस 5 बाई 2 एंड 7 पाई बाई 2, इस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दीज इंटरसेक्शन पॉइंट गिव्स द पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा। अल्फा इक्वल्स टू 0 आपको हटाना पड़ेगा, बिकॉज अल्फा इक्वल्स टू 0 पे आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा है। बाकी जो रेस्ट वैल्यू है, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, प्लस माइनस 7 पाई बाई 2 गिव्स यू दी पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा। अब आप इसको क्या रख सकते हैं, अल्फा की, इसको एक जनरल एक्सप्रेशन में मैं लिख सकता हूँ, प्लस माइनस n प्लस 1, बिकॉज इफ यू पुट n इक्वल्स टू 1, सो दिस बिकम 3 पाई बाई 2, 2 5 पाई बाई 2, 3 7 पाई बाई 2 equals to pi e sin theta upon lambda. So finally you will get e sin theta equals to plus minus 2n plus 1 lambda by 2, where n will also vary from n equals to 1, 2, 3 and so on. So ये आपका एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, और इसकी पोजीशन आपकी क्या हो गई, माइनस 3 बाई 2 प्लस 5 प्लस माइनस 5 बाई 2 प्लस माइनस 7 5 बाई 2 एंड सो ऑन। सो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे और बात करते हैं, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ द इंटेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कि सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या है, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की अब ये मैक्सिमास हैं क्या, ये थोड़ा सा मैं यहाँ को समझाऊंगा। अब आपका एक्सप्रेशन ये था, इसको मैंने आई नॉट मान लिया था। इस एक्सप्रेशन में प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए कंडीशन आपने लगाई थी अल्फा इक्वल्स टू 0, सो दिस वैल्यू इज ए स्क्वायर। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आपका कहाँ मिल रहा है, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 पाई। यू जस्ट पुट इट हियर, you will get the intensity value is intensity value looks like I naught by 2 या a square by 22। second secondary maxima I2 5 pi by 2 पर मिल रहा है, तो you will get this value। so the intensity किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, I0 I1 I2 I3, प्रिंसिपल मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। so this intensity is varies I0 4 upon, यहाँ से भी लिख सकते हैं आप 9 पाई बाई स्क्वायर आई नॉट, 4 25 पाई स्क्वायर आई नॉट, या 1 इंटू 9 पाई स्क्वायर इस टू, रेशो आप एक तरीके से निकालें 4 25 पाई स्क्वायर। तो ये कभी कभी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा जाता है, तो इस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रूफ करने के लिए भी आप समटाइम्स इट विल बी इन योर एग्जामिनेशन, तो आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको मैं यहाँ थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा हाउ द इंटेंसिटी इज वैल्यू। So that is the position of the principal maximum at the screen, and these conditions on the both side is
the condition for the minima. ये जो points में I am just highlighting, these position are known as the position of the minima. अब ये जो पहला मैक्सिमा मिला आपको दोनों साइड, दिस इज द कंडीशन फॉर द फर्स्ट मैक्सिमा, और आप कह सकते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा दोनों साइड, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा दोनों साइड मिलेगा. इफ यू रोटेट इन, then you will get the condition for the first secondary maxima, second secondary maxima, and third secondary maxima, and so on. So now I am just going to the going to calculate the width of the central maxima. आपको काफ़ी questions इस पर मिलेंगे. So I am just draw this diagram in this looks in this way. लाइट यहाँ से यहाँ आई, ये सेंटर पे आपका सेंट्रल सेक्शन मैक्सिमम, यहाँ आपके मिनिमास मिल रहे हैं. तो आपको जो इतना विड्थ, लेट से विड्थ दोनों साइड समान होगी, इनकी डिस्टेंस भी आपकी, लेट से दिस डिस्टेंस इज d एंड दिस विड्थ इज e. आई ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स. नाउ अब यहाँ से आप क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालेंगे, इफ यू टेक एनी वन ऑफ द ट्राइंगल, सो दिस वैल्यू इज प्लस माइनस बाई अपॉन d. वाई दिस? बिकॉज बाई यू आर टेकिंग प्लस माइनस, बिकॉज यू नीड टू कैलकुलेट बोथ साइड, या यहाँ कैलकुलेट करें या यहाँ कैलकुलेट करें, तो प्लस माइनस बाई अपॉन d, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आपकी वैल्यू निकल के ये परपेंडिकुलर अपॉन, अगर आप कैलकुलेट यहाँ से करेंगे, इफ़ यू कंसिडर दिस विड्थ, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन d यहाँ से निकल के आ जाएगी. नाउ यू कैन टेक लेंस इज वेरी क्लोज. अगर आप अजम्पशन ये लेके चलना है कि लेंस इज वेरी क्लोज का मतलब क्या होगा, स्लिट हैविंग विड्थ थी, तो y अपॉन d, ये एक तरीके से आप कंडीशन निकालते हैं, जैसे वहाँ आपने निकाली थी उसी तरीके से यहाँ कंडीशन आपने निकाल ली साइन थीटा की वैल्यू. अब यहाँ से आप कंडीशन देखेंगे, लेंस इज वेरी क्लोज टू द स्लिट के काफ़ी पास है ये लेंस जो है, जब जो आपकी उसको फोकस कर रहा है लाइट को स्क्रीन पे, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन दी इसमें स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द फोकल लेंथ. तो मैं इसको फोकल लेंथ से भी रिप्लेस कर सकता हूँ. अब मैं यहाँ से कंडीशन बात करता हूँ, मिनिमा की कंडीशन यहाँ क्या होगी, दिस इज बेसिकली फर्स्ट मिनिमा, ये मिनी मैक्सिमा नहीं है, यू जस्ट रिमूव इट. कंडीशन फॉर मिनिमा यू कैन राइट इट, सो द ई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लेमडा. एन की वैल्यू 1 होगी, सो दिस बिकम प्लस माइनस एन लेमडा. यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस लेमडा अपॉन ई, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स लेमडा अपॉन ई. अब लेमडा अपॉन ई, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में मैं दिखा चुका हूँ, ये वाई अपॉन डी के बराबर है, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वाई डी अपॉन ई. यहाँ से जो विड्थ आपको कैलकुलेट करनी है, अब विड्थ आपको पूरा चाहिए तो यू कैन टेक द ट्वाइस ऑफ दिस y, तो 2y इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा डी अपॉन ई. और इस एक्सप्रेशन को d को मैं f के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, तो दिस एक्सप्रेशन विल बी 2i ऑफ y इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 2 लैम्डा f अपॉन ई. अब इसमें कुछ फीचर्स हैं, जो फीचर्स मैं आपको बता दूँ कि अगर इसकी वैल्यू में स्लिट की विड्थ को क्या करूँ, रिड्यूस करूँ, तो क्या होगा, आपका स्लिट की विड्थ को रिड्यूस करने पे मुझे क्या होगा, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 91 हो जाएगी. अगर स्लिट की विड्थ को मैं बढ़ाऊँ घटाने की जगह, तो थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जिसकी वजह से पीक आपके शार्प आएगा. सेकेंड थिंग, अगर इसकी जगह मैं व्हाइट लाइट यूज़ करूँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह, तो क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा तो आपका व्हाइट ही होगा, जैसे आप ग्रेटिंग में देखते हैं बिल्कुल व्हाइट ही आता है, और अदर साइड विल बी रेड, क्योंकि आप सिंगल स्लिट यूज़ कर रहे हैं, और ग्रेटिंग इज अ केस ऑफ एन स्लिट. तो ये आपका यहाँ तक सिंगल स्लिट का केस था. इसमें अगर आपको कहीं डाउट है, आप इसको अच्छे से करिए. अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क एनी टाइम टू मी, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. और ये सिंगल स्लिट और आपका ग्रेटिंग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसके बीच में आता है डबल स्लिट. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर फ्रॉम अपर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट एंड द ग्रेटिंग ऑल्सो. सो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिस्कस करिए, अपने कलीग्स को साथ डिस्कस करिए, जो भी हैं, जो दोज हु आर नॉट टेकिंग द इंटरेस्ट इन फिजिक्स, सो दे हैव टू टेक इंटरेस्ट इन फिजिक्स, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आप इसको करिए, जो भी न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट में आपको गिवन है, यू कैन सॉल्व देम. देन वी विल टॉक अबाउट लेटर इन द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.